Assalamu alaikum students. Today we will study about functional groups. Functional groups are atoms or group of atoms that gives the family of organic compound its characteristics, physical और chemical properties. So मैंने आपको बताया था कि जितने भी functional groups होते हैं they contains the carbon as an essential elements. Along with the carbon, hydrogen is also present in all the organic compounds. But organic compounds, in addition to carbon and hydrogen, they also contains other atom or group of atom. For example, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens. So we can say that organic compounds, there are million of organic compounds which have different atoms or group of atoms, including carbon and hydrogen. So we have classified the organic compound into different functional groups in order to make their study easier. So the study of organic compound organized around functional groups. Each functional group defines a family of organic compounds, and there are million of organic compounds, so we have only small number of functional groups in order to make their study easier. First of all, we will study the functional group in detail one by one. So first functional group is the functional group containing carbon, hydrogen and halogens. This functional group is also called as haloalkanes. Haloalkanes are characterized by the presence of halogen atom. For example, मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन. जब हम मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, we will get methyl radical. When we will replace one hydrogen of methane with halogen atom, then we will get a class of organic compound which are known as haloalkanes. They are characterized by the presence of halogen atom. इनमें कोई सा भी halogen atom present हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन or iodine. So halogens are characterized by the presence of halogen atom. When we replace one hydrogen atom of an alkane with halogen atom, we will get the class of organic compounds which are known as haloalkanes. For example, we have ethane, CH3CH3. When we will replace its one hydrogen, we will get ethyl radical. And when we will replace this ethyl radical with any halogen atom, for example bromine, we will get a class of organic compound which are known as haloalkanes. अब जब हमने इनकी नेमिंग लिखनी है तो we will name the halogen atom first. For example, इसमें हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन से हमारे पास हो जाएगा क्लोरो, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन. सिमिलरली जब हम इथाइल को ब्रोमीन के साथ अटैच करेंगे तो we will get the class of organic compound, इसको हम कहेंगे ब्रोमो इथेन. सिमिलरली अगर हम प्रोपेन का एक हाइड्रोजन किसी भी हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस करते हैं तो उसको हम ब्रोमो प्रोपेन कहेंगे. सिमिलरली ब्रोमो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन. लेकिन इसकी नेमिंग करते वक्त ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन विच इज़ नोन एज हेलोअल्केन्स. और इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन हेलोजन एटम. When we replace one hydrogen atom of any alkane with halogen atom, we will get a class of organic compounds which are known as haloalkanes. और इसकी नेमिंग करते वक्त पहले आप हेलोजन को नेम करेंगे, उसके बाद एल्केन को नेम करेंगे. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब हमारे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आते हैं विच कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, और इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. इसमें हम नंबर वन पार्ट जो इसको में फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल्स का. अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ OH. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द हाइड्रोकार्बन चेन. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द मीथेन. मैंने आपको बताया था कि मीथेन का अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं यू विल गेट मिथाइल रेडिकल. मिथाइल रेडिकल को हम अगर डायरेक्टली OH के साथ अटैच कर दें वी विल गेट अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नोन एज अल्कोहल्स. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अल्कोहल की एंडिंग हमने OL से करनी. फॉर एग्जांपल, अभी ये हमने मीथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया है
उसके साथ हमने OH अटैच किया। तो अगर हम मीथेन का E हटाएंगे और OL लगा देंगे तो इसका IUPAC नेम होगा मेथानॉल। सो मेथानॉल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन। सिमिलरली अगर आप इथेन, ये मैंने आपको बताया था कि इथाइल रेडिकल है, इसको अगर हम डायरेक्टली OH के साथ अटैच कर देते हैं, then we will get a class of organic compound which are known as alcohols. Alcohols are characterized by the presence of OH group. Alcohols जितने भी होते हैं इनके अंदर OH group present होता है। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, इथेन का E हटा के OL लगाएंगे तो इट्स नेम विल बी एथानॉल। यहाँ फिर इसको आपने 9th क्लास में भी मेथानॉल और एथानॉल के स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं। इनको हम मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर यूज़ करते हैं तो हम इसकी एंडिंग OL से करेंगे, मेथानॉल एंड एथानॉल। सो दीज आर द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट example of carbon, hydrogen and oxygen as a functional group. The class of organic compounds are called as ethers. They also contains carbon, hydrogen and oxygen. इसमें देखें ethers में ये होता है कि organic compounds they have two alkyl groups that are attached to the same oxygen atom. इनकी बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन सेंटर में होता है एंड इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन ऑन बोथ साइड, यानी ऑक्सीजन एटम इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर, ऑन द बोथ साइड्स वी हैव एन अल्काइल ग्रुप, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ईथर्स के जो नेम्स होते हैं ना उनको हम नेम्स इस तरह करते हैं कि अब ये दोनों सेम है, दैट्स वाई इसको हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2, डाई मिथाइल ईथर। सिमिलरली अगर हम एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा दें, दूसरी साइड पे फॉर एग्जांपल आप लोग ऑक्सीजन सेंटर में रखनी है और दूसरी साइड पे इथाइल ग्रुप लगा दें, अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे। ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम इथाइल ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को मिथाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो अब आपको पता है कि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, दैट्स वाई इट्स नेम विल बी इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसका नेम हमारे पास होगा इथाइल मिथाइल ईथर। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा देते हो, दूसरी साइड पे प्रोपाइल ग्रुप, तो इसका नाम जब आप इसको नेम करेंगे तो नेम इसका हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। फॉर एग्जांपल ये देखें, दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड पे आप लगा दें प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप के अंदर ज़ाहिर 3 कार्बन्स होंगे, तो इसका नेम हम जब लिखेंगे ये मिथाइल ग्रुप है और दिस इज़ प्रोपाइल। तो आप इसको जब अल्फ़ाबेटिकली नेम करेंगे तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि एम पहले आता है दैट्स वाई इसको हम अल्फ़ाबेटिकली नेम करते हैं। सो अल्कोहल्स को हम करेक्टराइज करते हैं, इनका जनरल फार्मूला हम लिखते हैं ROR डैश। ROR डैश का मतलब ये होता है कि R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। सो दीज आर कॉल्ड एज ईथर्स। Next functional group which contains carbon, hydrogen and oxygen, they are also called as phenols. Phenols का मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि phenols में सिंपल चीज़ ये होती है कि they are characterized by the presence of बेंजीन। मैंने आपको बेंजीन रिंग का पीछे क्लासिफिकेशन में बताया था कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हम OH से रिप्लेस कर दें तो this compound is called as phenol. So phenol also contains carbon, hydrogen and oxygen. बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 को जब हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगाएंगे तो अब फिनोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H5OH. C6H5OH, this compound is also called as phenol. So phenols are characterized by the presence of OH group. So students, I have told you about different functional groups. First functional groups are called as haloalkanes. They contains carbon, hydrogen and halogen. Second, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। उसमें फर्स्ट मैंने आपको अल्कोहल्स कराई है जिसके अंदर OH ग्रुप होते हैं। उसके बाद हमने ईथर्स की है। ईथर्स हैव COC लिंकेज, ऑक्सीजन एटम सेंटर में होता है और दोनों साइड्स पे कार्बन एटम्स होते हैं। सिमिलरली फिनोल्स भी मैंने आपको एग्जांपल करवाई है। फिनोल्स के अंदर बेंजीन रिंग इज़ डायरेक्टली अटैच विद OH। फिनोल्स की बस आपने एक ही एग्जांपल करनी है, दैट इज़
benzene ring directly attached with OH group. So this is the functional group. इसके बाद हमारे पास different functional groups की examples हैं, तो वो हम one by one study करेंगे.